आर्टिकल
बच्चे दिख रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ बस, और कास्ट कर लो फटाफट, होता ये ना। नेत्रो आ गया लाइव, गोइंग लाइव इन 3
गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इन लोग को आवाज कैसे जाएगा? Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Arav, Dushar, Dviz, Ishika, Shaujanya, Yashika. Okay. So today we are going to start with the real number chapter. So first topic is Euclid division lemma. How many of you are aware about Euclid division lemma? देखो फर्स्ट ऑफ थिंग मैं इसमें ये चीज आपको बता दूं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोलेंगे कि ये सिलेबस में नहीं है या फैकल्टी भी बोलेंगे ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन इसके एप्लीकेशन सिलेबस में है। Question, they will not ask the question like Euclid, what is Euclid division lemma, but they will ask the application based on Euclid division lemma. So first we have to understand what is Euclid division lemma, then after we can apply that theorem to another questions. So let's say there are two positive integers a and b, and there exists unique integer q and r that satisfying the relation a is equal to bq plus r, and r is the integer value, r is an integer value that lies between 0 to b. We will not make equality at b. Okay, so value of r is greater than equal to 0 but less than b. So what is the maximum value of b possible? Anyone? What is the maximum value of r that is possible for this relation? Can anyone let me know? Maximum possible value of r. Yes. So maximum possible value of r will be b minus 1. So ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि r की जो भी वैल्यू होगी वो इंटीजर के टर्म्स में होगी, 0 से स्टार्ट होगा, लेट्स से 1 2 3, और हम वहां तक लेके जाएंगे जो पॉजिटिव इंटीजर b दिया हुआ है उस b से -1 तक लेकर जाएंगे, हम वहां तक b की वैल्यूज r की वैल्यूज लिखेंगे, हम लोग b -1 तक लेके जाएंगे। नाउ सो दिस इज जस्ट द लेमा, एक थ्योरम की तरह हम इसे ध्यान में रखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर a एंड b हमने सिलेक्ट किया है, देन वी विल से दैट देयर आर सम यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying this relation. Okay, so just take any दो पॉजिटिव इंटीजर्स, let's say 4 and 7. These are two positive integers. So can we write 7 is equal to 1 into 4 plus 3? Can we write like this? Yes, 1 into 4 is 4 and plus 3, that is 7. So this quantity is what? B or Q? क्या है ये? This is the number A and B. So definitely if this is a number A, then this 4 is the number B. So definitely this one is Q, na? Okay, so R की वैल्यूज की अगर मैं बात करूं तो R की वैल्यू जो है 0 से B के बीच में होनी चाहिए। देख लो B कितनी है? 4. So there is a number 3. We can directly say 3 is less than 4. Yes. So Yes, this sir.
क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइंग, आर की वैल्यू जो है 0 से b के बीच में होना चाहिए, b पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। यहाँ पर जो हमने r की वैल्यूज फाइंड आउट की है, दिस इज r एक्चुअली, एंड r इज लेस देन b हमें यहाँ पर मिल रहा है। b की वैल्यूज 4 है एंड r की वैल्यू 3 है, सो r इज लेस देन b। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, किसी को डाउट होगा तो रिपीट करवाना है यहाँ पे। डाउट है? Yes, sir. So let's say we are taking another numbers like 2 and 8. So can we write 8 is equal to 2 into 4 plus 0? So this is a number A, this is a number B, and this is Q, and this is R. So we know that value of R is less than B. Okay, so R is 0 and B is 2. So 0 is less than 2. देखो B की वैल्यूज 2 है एंड R की वैल्यू 0 है, सो वी कैन से 0 इज लेस देन 2। क्लियर हुआ? नाउ अब इक्वली डिवीजन लेमा का यूज क्या है, हम उसके एप्लीकेशन पे बेस्ट पे यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो लेट्स से दो नंबर से ए एंड बी, एंड इक्वली डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग मैं उस नंबर को ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के टर्म्स में लिख रहा हूँ। सो आपको ये ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि आर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी है। अब इस डिवीजन लेमा को यूज कर रहे हैं हम किसी भी दो नंबर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए। So let's choose some number C and D that are the integers only, and we have considered C is greater than D. So definitely by using the Euclid division lemma, just we can write C is equal to DQ plus R. B की जगह यहाँ पर क्या है जरा बताना? जो ऊपर में B है उसकी जगह हमने यहाँ पर क्या लिया है? D लिया है, एंड Q तो सेम वे में Q यहाँ पर लिखा गया। सो C इज इक्वल टू DQ प्लस R। अब R की वैल्यूज कहां से कहां तक होगी? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 आपको बताना है, लास्ट में मैं क्या लिखूं? D लिखेंगे। ओके, वेरी गुड। सो ये जो आ गया, अगर हम इसी तरीके से लेमा को अप्लाई करते रहें कंटिन्यूअस मैनर में, अगर R की वैल्यू 0 जिस स्टेप में निकल कर आएगी, उस स्टेप में जो वैल्यूज निकल कर आएगी D वाली, वो D की वैल्यू जो होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रहा होगा। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन कहलाएगा। हम इसको अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरीके से हम इसे अप्लाई कर पाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। सो these are the questions from exercise 1.1. They are saying that apply Euclid division algorithm to find the highest common factor of these two integers. Both are integers. So first let me know which one is the largest integer, 135 or 225? 225. 225. So we 225. write 225 is equal to, मैंने यहाँ पर 135 पहले लिखा। अगर 135 को मैं 2 से मल्टीपल कर दूं तो 2 से मल्टीपल करने के बाद जो क्वांटिटी आएगी that will be 270. That is greater than 225 ना, है या नहीं? तो हमें 2 से मल्टीपल नहीं करना है, कितने से मल्टीपल करना पड़ेगा? 1 से। अब 1 से मल्टीपल किया तो 1 से मल्टीपल करने के बाद ये 135 बनेंगे। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए दोनों को, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कितने बनेंगे? 80 आ रहा है क्या? 90। ओके, सो दिस विल बी 90। तो 90 आ रहा है तो यहां पर हम क्या लिखें? 90 लिखे या माइनस 90 लिखें? प्लस 90। 135 में अगर मैं 90 ऐड करता हूं तो हमें 225 मिल जाएगा। सो ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब मुझे कैलकुलेशन किन दो के बीच में करना है? 90 और 135 या 135 225? किसके बीच में करना है? 90 एंड, क्योंकि हमने 225 एंड 135 के बीच में तो ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो अब ये जो यहाँ पर नंबर्स बच रहे हैं R, मैं इसकी बात करूंगा, और यहाँ पर जो D बच रहे हैं वो मैं उसकी बात करूंगा। सो 90 और 135, 90 एंड 135 में 135 ज्यादा है, सो मैंने यहाँ पर लिखा 135 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर 90 लिखा। ओके, 90 को अगर मैं 2 से मल्टीपल कर दूं तो सर ये 180 बनेगा।
180 ज्यादा हो गया क्या 135 से? यस, तो हमें 1 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 90। अब कितने रिमेनिंग ऐड करना है मुझे उसमें? 45, है ना? अगर मैं इसमें Yes, sir. 90 सब्ट्रैक्ट कर लूं तो 90 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 एंड ये 4 बनेंगे, है ना? तो वही 45 मैंने यहाँ पर ऐड किया। अब नेक्स्ट एल्गोरिथम जो यूज होगा वो किसके बीच में होगा लेम्मा? 90 or 90 and 40. 45. So bigger number is 90 and this one is a smaller number 45. So we will write 90 here, we will write 45 here. So अगर मैं 45 को 2 से मल्टीपल कर लेता हूँ, what will be the quantity? 90, एग्जैक्ट 90 है ना, तो मैंने यहाँ पर 2 into 45 लिखा। What quantity we have to add here? 0. सो हमने यहाँ पे 0 ऐड कर लिया। क्या रिमाइंडर 0 हो चुका है? अब यहाँ से हमें रिमाइंडर की वैल्यू 0 मिल गई। Yes, sir. So what will be the highest common factor? 2 और 45? क्या होगा highest common factor? 45. 45. So we will say that, just we will write like this one. Highest common factor between the number 135 and 225 is equal to 45. We will write like this one. Because remainder is 0 in this step. जिस step में remainder 0 आएगा, हम वहीं से ये number को catch करेंगे। कंप्लीट कीजिए इसे। अरव, बिंदु सागर, दयानंद, इशिका, सौजन्य, जसिका, क्लियर हुआ आपको ये प्रॉब्लम? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So we will do the same questions. Question number 2, 196, 38220. First write down this one. पहले इसको लिख लीजिए, कंप्लीट हो जाए तो आप बता देना, डन कर देना। सेकेंड वाला ट्राई कीजिए खुद से। 196 एंड 38220 जो लिखा हुआ है, आप उसे ट्राई कीजिए। आगे आंसर। So सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। Bigger number is 38220, so we will write 38220 is equal to, मैंने यहाँ पर 196 लिखा। 196 को अगर मैं 10 से मल्टीपल करता हूँ तो 10 से मल्टीपल करने के बाद 1960 आएगा। सर 10 से मल्टीपल करने पे 1960 आ रहा है, अभी तो 4 डिजिट ही है यहाँ पर और यहाँ पे 5 डिजिट है, तो क्यों नहीं मैं 100 से मल्टीपल करके देखूं। अगर मैं 100 से मल्टीपल करूं तो 19600 निकल कर आएंगे। सर दिस इज 5 डिजिट, दिस इज 5 डिजिट। नाउ सर दिस इज ऑलमोस्ट अबाउट टू डबल, है ना? जब डबल है तो हमें किससे मल्टीपल करना चाहिए? 200। तो अगर मैं 200 से मल्टीपल करूं तो ये कितने निकल कर आएंगे जरा देखो। 6 2 12 एंड दिस विल बी 39200। ये क्वांटिटी आएगी। सर दिस क्वांटिटी इज लार्जर एक्चुअली, अगर 20 से मल्टीपल करता हूं तो मुझे मल्टीपल चेक करना पड़ेगा कि 196 को 19 से मल्टीपल करते हैं तो कितना आता है। मल्टीपल कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। Sir, 9 6 are 54, so this is 4 and 5. 9 9 are 81, 81 and 5. So this will be 6, and this is 8. 9 1s are 9 and 8, 17, and this is 196. So this is 4, this is 2, 7, 3, 3724, 37240। अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितने आते हैं? 9। अभी भी सर ये क्वांटिटी जो है वो 9 से मल्टीपल करने के बाद ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा हो रही है तो अब हमें और भी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, ऐसे ही मुझे चेक करना पड़ेगा। तो 196 को अगर मैं 196 से मल्टीपल करके देखता हूं तो कितना आ रहा है, चेक करो। 196 का स्क्वायर,
कितने आ रहे हैं, ज्यादा हो रहे कम हो रहे हैं? 195 आएंगे। ओके, सो 38 195, तो 195 से मल्टीपल करके देख लो। 195 से मल्टीपल किया तो सर 048, 9 से मल्टीपल कीजिए और बताइए वो क्वांटिटी कितनी आ रही है मल्टीपल करने के बाद? एग्जैक्ट आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है। तो 195 को 196 से मल्टीपल किया तो 38220 निकल कर आ रहे हैं। सर दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 आएगा, इट मींस रिमाइंडर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आते हैं उसी स्टेप में हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी मिलता है। सो व्हाट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 195 और 196 दोनों में से कौन से? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 195 और 196। हम निकाल किसके बीच में रहे? 196 और 38220 के बीच में निकाल रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो कौन सा होगा? 196। 195 और 196। अभी प्रीवियस जो हमने एग्जांपल लिया था, लेट से मैं एक क्वांटिटी 8 रखता हूं और एक क्वांटिटी 4 रखता हूं, तो जब मैंने 8 लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 0। What you will say about the highest common factor between 8 and 4? You will say 2 or 4? Highest common factor क्या है दोनों में? 4 है ना? So what we will say about the answer? 196 or 195? 196. 196। Correct answer 196. is 196. जब भी कंफ्यूजन क्रिएट हो तो ऐसे छोटे नंबर्स लेकर थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन करके एडजस्टमेंट करके देखो कि हम किसको कंसीडर कर रहे हैं। 8 एंड 4 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 4 है, तो हम 2 को ड्रॉप कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, तो ये 195 को ड्रॉप करेंगे, आंसर विल बी 196। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 867 एंड 255। जब ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा कैलकुलेशन को करने में। जब छोटे क्वेश्चंस होते हैं तो कैलकुलेशन को करने में प्रॉब्लम नहीं होता। सो 225 है and 867. So we will start with 867 is equal to 255. अगर मैं 255 को 3 से मल्टीपल करता हूं, so 5 3s are 15, 1 5 3s are 15 and 1 16, 1 carry over, 3 2s are 6 and 1 7. So it will be 7, it will be 3 into 255. जो सब्ट्रैक्ट करनी है क्वांटिटी दैट इज 765। 765 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्वांटिटी निकल कर आएगा 201 है। सो प्लस 102 कर लें, यहाँ पे आ रहा है सबका? ओके, नेक्स्ट स्टेप विल बी, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? हम किसके ऊपर में यूक्लिड लेमा अप्लाई करेंगे? 255 एंड 102। So 255 is the bigger number. 255 को मैंने यहाँ पर लिख लिया is equal to 102 प्लस सम क्वांटिटी यहाँ पर लिखना है अगर आएगा तो। अब 102 को मैंने 2 से मल्टीपल किया, इट विल बी 204। ओके, अगर मैं 3 से मल्टीपल कर लेता हूँ तो डेफिनेटली इट विल बी 306 एंड दिस इज ग्रेटर देन 255, so this cannot be written. Okay, so 2 से ही हमें लिखकर काम चलाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 2 लिखा, 2 into 102 that is 204। 204 मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 5 and this is 0, so residue will be here 51। ये क्लियर हुआ सबको? 51। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप विल बी, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप इसके बीच में? 102 and 51। so let's write 102 is equal to 51 प्लस समथिंग। सो यहाँ पर मैं किस नंबर से मल्टीपल करने हैं? सर 51 को अगर मैं 2 से मल्टीपल करूं तो एग्जैक्टली 102 हो जाएगा। 2 से मैंने मल्टीपल किया। नाउ व्हाट विल बी आर हियर? आर की वैल्यूज यहाँ पर कितनी लिखनी है? 0 लिखनी पड़ेगी। तो जिस स्टेप में आर की वैल्यू 0 होती है उसी में मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी मिलना चाहिए। सो व्हाट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 51। So we will say that highest common factor between the number 867 and 255 is equal to 51.
दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हो जाएंगे? ओके, तो एक क्वेश्चंस में फिर से रख रहा हूँ यहाँ पे। सर एक बार ये सेकंड क्वेश्चन है वो फिर से एक बार करवाना। सेकेंड क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दूं? यस सर। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन था। 38220 है ये। इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा d टाइम्स q प्लस r के टर्म में। तो यहाँ पर जो d जो क्वांटिटी है दैट क्वांटिटी इज 196, तो मैंने यहाँ पर 196 लिखा। अब इसके साथ मल्टीपल में कुछ आना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा लिखता हूँ, समझ में है। 196 प्लस r, यहाँ पे कुछ मल्टीपल करना है। तो 196 को अगर 195 के साथ मल्टीपल कर रहे हैं तो मल्टीपल करने के बाद एग्जैक्टली 38220 निकल कर आ रहा है। सो 195 से मैंने यहाँ पर मल्टीपल किया इनटू r की वैल्यूज यहाँ पे 0 निकल कर आ रही है, क्योंकि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों सेम है। सो d की वैल्यूज यहाँ पर ये रही, और यही हमारा HCF कहलाएगा। हम जिससे मल्टीपल करते हैं वो HCF नहीं होता। HCF दैट नंबर जो यहाँ पर d के टर्म्स में निकल कर आता है। सो d की वैल्यूज यहाँ पर 196 है, सो HCF विल बी 196। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके, नाउ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में दिखेंगे लेमा के तौर पे ना हो तो। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। तो इसमें आपको एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग पहले बिठानी पड़ेगी इस थ्योरम को देखकर, कि देखो सर यहाँ पर है ना a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के टर्म्स में लिखा जाता है। तो मैं a के बारे में अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगा a क्या है। मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूंगा बी क्यू। हमें क्वेश्चन में कैसा रहेगा 2m प्लस 1, 2m प्लस 3, या फिर 2q प्लस 1, 2q प्लस 2, ऐसे होंगे। तो ये 2q प्लस 1 ऐसे जो है ना, वो b की वैल्यूज सिलेक्ट करना होगा कि b की वैल्यूज क्या है। तो इन क्वेश्चंस में b की वैल्यूज क्या है 2, एंड q तो अपनी एडजस्टमेंट ले रहा है, q की वैल्यूज m है या q की वैल्यूज q ही मैंने लिखा है। तो आपको बताना है कि अगर किसी क्वेश्चंस में मुझे ऐसा कुछ प्रूव करने के लिए रहा है 5m प्लस 1, 5m प्लस 3, ऐसा कुछ प्रूफ करने के लिए मुझे कुछ बोला गया है, तो मैं b की वैल्यूज क्या सिलेक्ट करूंगा 5। यहां से मुझे ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि सर b की वैल्यूज मुझे 5 लेनी पड़ेगी। अगर b की वैल्यूज 5 लेनी है तो मुझे r की पॉसिबल वैल्यूज बता दो कि क्या क्या ले सकते हैं। 0 to 4, सो r की वैल्यू 0 हो सकती है सर, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। 5 नहीं लेंगे क्योंकि r की वैल्यूज b से कम होनी चाहिए। b की वैल्यूज 5 है तो 5 से कम होनी चाहिए, r की वैल्यू 0 से 4 तक जाएगा। नहीं आया? ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये बोलता है कि अगर कोई भी दो इंटीजर में a एंड b को सिलेक्ट कर लूं और कोई भी दो इंटीजर q एंड r जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हम नंबर्स को इस पैटर्न में अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिखते आ रहे हैं। जैसे कि लेट सपोज कि हमारे पास एक नंबर है 3 एंड एक नंबर है 5, तो मैं 5 जो बड़ा नंबर है उसे लिख सकता हूं 1 इंटू 3 प्लस 2 लिख सकते हैं। यहां पर q की वैल्यूज कितनी है? q की वैल्यूज कितनी है? 1। कोई भी ऐसी गलती मत कर लेना कि q की वैल्यू 3 है। हमने इन नंबर को a एंड b बोला है, एक नंबर a है और दूसरा b है, तो सर ये नंबर a लेता हूं और ये नंबर b है। सो दिस इज a, दिस इज b, सो दिस विल बी q एंड दिस इज r। सो क्या r की वैल्यूज b से कम है? देख लो क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा Yes, है? sir. r की वैल्यू b से कम है, हाँ, यस सर। Yes, sir. b की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 2 है, वैल्यू सो 2 है। r की वैल्यूज b की वैल्यू से कम है। अगर मुझे इस टाइप के रिलेशन बनाने हों तो आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान में आया कि सर नंबर दिए हुए थे 3 एंड 5, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 यूज किया है ना। तो उसी तरीके से अगर मुझे कोई भी रिलेशन ऐसा कुछ बनाने के लिए बोले कि लेट से मैं कुछ ऐसा लिखता हूं 3q प्लस r, तो इन दोनों रिलेशन को जस्ट ऑब्जर्व करना
और डिसाइड करो कि इसमें बी की वैल्यूज कितनी है। बी की वैल्यू 3 है? कंपेयर Yes. करना है जस्ट अपने को। अगर बी की वैल्यू 3 है तो कैन वी राइट 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन 3 इस वाले रिलेशन से, है ना? तो आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी? 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, हम 3 नहीं लिख सकते। सो दीज आर 3 पॉसिबल वैल्यूज फॉर द आर फॉर द गिवन रिलेशन। એ આનાથી નાનું આવવું જોઈએ પણ એટલે 0 1 અને 2 हाँ बोलिए, લખાય ને क्लियर हुआ? हेलो, Yes, sir. ओके। Now, read this question. Exercise 1.1 का 2 क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है ये। So that every odd integer is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ी सी इवन नंबर एंड ऑड नंबर को समझेंगे कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। सो हाउ टू रिकॉग्नाइज अ नंबर इज इवन नंबर, कैन यू लेट मी नो? वैसा कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए वैसे नंबर को मैं इवन नंबर बोलूंगा। वो नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो तो उसे हम लोग इवन बोलेंगे या ऑड बोलेंगे? ऑड बोलेंगे। ओके, सो सिंपली अगर मैं कुछ यहां पर लिख रहा हूं 3 एंड मैंने बोला कि यहां पर कोई नंबर m है, सो कैन यू लेट मी नो दिस इज इवन और ऑड, और इट मे बी इवन और ऑड बोथ? बोथ। सर अगर आप m की वैल्यू 2 सेलेक्ट कर लोगे तो डेफिनेटली इस नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं। अगर आप m की वैल्यू 1 सेलेक्ट करोगे तो मैं डेफिनेटली इसको डिवाइड नहीं कर पाऊंगा 2 से। 3 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2 कंप्लीटली। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब ऊपर में फिर से इंटीजर बचना चाहिए, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। ओके, अगर मैं नंबर्स को ऐसा लिखूं 4q, इज इट इवन और ऑड? q इज अ इंटीजर, q कोई भी इंटीजर है, मैं 4q लिख रहा हूं तो ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? इट विल बी इवन नंबर बिकॉज वी कैन डिवाइड दिस बाय 2। सर 4 इंटू q है, इसको आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड हो गया। सो अगर मैं फिर से आपको मैं यहाँ पर पहचानने के लिए बोल रहा हूँ, अगर मैं ओनली 2m लिखूं तो इवन या ऑड? इवन नंबर। ओके, even number sir 6k, k इज इंटीजर, इवन नंबर क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर मैं 6k प्लस 1 लिख दूं तो इवन या ऑड? सर 6k इवन नंबर है, 6k इज अ इवन नंबर, और उसमें इवन नंबर में 1 ऐड कर लेता हूं, Odd. तो कोई भी इवन नंबर में अगर 1 ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा? odd हो ऑड जाएगा बनेगा। sir. ओके, Odd. और अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो Even. even इवन, 3 ऐड करें तो Odd. ओके। odd अब आपको इवन और ऑड नंबर पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, इस क्वेश्चन को देखकर आप मुझे डिसाइड करके बताइए कि बी की वैल्यूज कितनी लोगे। बाकी लोग भी बताइए कितने लेंगे। है ना अपने पास 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, तो मैं बी की वैल्यूज कितनी लेंगे? 6 लेंगे, है ना? जो भी नंबर्स वहां पर आपको दिख रहा होगा, 5 हो तो 5 लेंगे, 6 है तो 6 लेंगे, 2 है तो 2 लेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम वो वैल्यूज लेंगे। सो लेट a is any positive integer greater than, किससे बड़ा लेना पड़ेगा? a को किससे बड़ा लेना पड़ेगा? ग्रेटर देन b, और b की वैल्यूज यहां पर कितनी है? 6। सो मैंने एक नंबर चूज किया a जो b से बड़ा है। सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 6 टाइम्स q प्लस r। तो r की वैल्यूज कितनी से कहां तक जाएगी? 0 r लेस देन
6 ऐसा लिखेंगे, लेस देन 6 इट मींस 5 पे इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो ऐसे नंबर्स कौन कौन से बनेंगे? आर की वैल्यूज अगर 0 लूं तो नंबर्स कौन सा बनेगा? हेंस नंबर्स आर, कौन कौन से नंबर्स बन रहे हैं वो नंबर्स लिख लीजिए। बहुत ही सिंपल सा स्टेप्स है। आर की वैल्यू 0 लिया सर तो 6q, आर की वैल्यू 1 लिया तो 6q प्लस 1, 2 लेंगे तो 6q प्लस 2, 3 लेंगे तो 6q प्लस 3, एंड 4 लेंगे तो 6q प्लस 4, एंड 5 लेंगे तो 6q प्लस 5। हाँ हाँ, a इज इक्वल टू 6q प्लस आर से हमने ऐसा लिखा था ना, a इज इक्वल टू bq प्लस आर, है ना? तो प्रीवियसली जो हमने वो ऊपर का रिलेशन है उससे हमने क्या डिसाइड किया? b की वैल्यू 6, तो b की जगह पर मैं वहां पे 6 पुट कर रहा हूं, तो a इज इक्वल टू bq की जगह पर आ गया a इज इक्वल टू 6q प्लस आर। अब जो r की वैल्यूज होती है वो कहां से कहां तक होती है? 0 से लेकर लेस देन b तक। b की वैल्यू कितनी है? 6, सो r की वैल्यू 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 6 हो गया। अब r की वैल्यू उसी रेंज से मुझे उठाना है और एक एक करके उसी रिलेशन में पुट करना है। कौन सा रिलेशन? a इज इक्वल टू 6q प्लस r में। अगर a इज इक्वल टू 6q प्लस r में r की वैल्यू 0 पुट करूं तो वो नंबर क्या बचेगा? a 6q। r की वैल्यू 0 पुट करना है, और अगर r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 6q प्लस 1, r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6q प्लस 2, r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 6q प्लस 3, है ना? तो कंटिन्यूअसली कहां तक पुट करना है वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। 6 पुट कर सकते हैं क्या? r की वैल्यू 6 से कम होनी चाहिए, तो मैं 6 पुट नहीं करूंगा। अब इन नंबर को देखकर मुझे ये चीज बताइए कि इनमें से कौन कौन से नंबर 2 से डिविजिबल हैं। जिसमें रिमाइंडर इवन है। तो सबसे पहले 6 नंबर को देखकर मुझे पता चला 6 इज डिविजिबल बाय 2, हेंस 6q इज इवन नंबर। और 6q अगर इवन नंबर है तो 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 दोनों क्या हो जाएंगे? इवन नंबर हो जाएंगे। और दो इवन नंबर के बीच में एक कौन सा है? ऑड नंबर है। हमें देखो ऊपर स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हमने पॉजिटिव नंबर लिया है a को, तो a को अगर मैं पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं तो b एंड q एंड r ये सब के सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर होंगे, एटलीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ इसके बाद का स्टेटमेंट क्या होगा? 6q इज डिविजिबल बाई 2 एज, यह स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा मुझे वहां पर, एज 6q इज डिविजिबल सिक्स क्यू प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 आर कौन सा नंबर है? इवन नंबर्स, एंड 6q प्लस 1 6q प्लस 3। सर आपने इवन के बाद क्या लिखा है? ऑड्स प्रूफ हो गया ये। सर इवन के बाद लिखा है नंबर्स, NOS लिखा है, आप उसको NUMBERS लिखिएगा, नंबर्स। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है NOS, आर इवन नंबर्स। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे। मैं मिटा दूं, इरेज कर दें? यस सर। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछिए। सर हम 6q प्लस 6 क्यों नहीं ले सकते सर? 6q प्लस 6 क्यों नहीं ले सकते? ओके, सो हमने जो b की वैल्यूज सेलेक्ट की, वहां पे जो वैल्यूज ली है r की वैल्यूज क्या है? लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, ये लेमा में आया था।
हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी की वैल्यूज कितनी है? 6। सो बी की वैल्यू 6 है, तो मैं लिखूंगा 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन 6। ये बनकर आ रहा है। तो आर की वैल्यूज हम वही सिलेक्ट करेंगे जो 6 से कम होगी और 0 और 0 से बड़ी होगी। तो सर 0 ले सकते हैं आर की वैल्यूज, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 6 नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड नहीं है। आर की वैल्यू 6 से कम होनी चाहिए, तो मैं 5 तक ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। ना इसके पहले भी एक क्वेश्चन ये वाले के बारे में सोचो। आप इसको देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि 4q+1 एंड 4q+3 के बारे में बोला है, ऑड इंटीजर है, तो b की वैल्यूज हमें क्या लेना चाहिए? एकदम सिंपल है, जो भी नंबर आपको q के आगे या m के आगे दिखेगा आपको वही नंबर ले लेना है, 4 ले लेना है। ठीक है, सो हमें प्रूफ क्या करना है? ऑड इंटीजर ही प्रूफ करना है। तो मैं प्रीवियस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी डेटा को चेंज करके यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहले इसको हटा लो आप और सेम लैंग्वेज में आप लिख लीजिए 4q+1 4q+3। ये दो नंबर को मुझे ऑड इंटीजर हैं, ये मुझे प्रूफ करने हैं। सो व्हाट वी विल टेक अबाउट बी, बी की वैल्यूज क्या लेनी है? 4। तो वी विल से लेट अ पॉजिटिव इंटीजर, मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर चूज किया और उसका नाम रख लिया a। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो बी की वैल्यूज 4 है, तो मैंने यहां पर लिखा 4q+r। तो मैं 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन लिखूंगा। किसके लेस देन लिखना है यहाँ पे? 4, जो भी b की वैल्यूज है उससे ही हमें यहाँ पे लिखना है। अब r की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगी? 0 to 3। 0, 1, 2 एंड 3, इतने पॉसिबल हैं। अब ये जो पॉसिबल वैल्यूज हैं इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है? हेंस a कैन बी, a जो नंबर है वो क्या हो सकता है? सर 4q हो सकते हैं, 4q+1 हो सकते हैं, 4q+2 हो सकते हैं, 4q+3 हो सकते हैं। 4q+4 तो लिखेंगे ही नहीं हम लोग। अब इस नंबर्स को देखकर बताओ कि इनमें से कौन कौन से नंबर 2 से डिविजिबल होगा? 4q, 4q and 4q+2। 2 plus 2 and 4q। ओके, 4q एंड 4q+2 आर डिविजिबल बाई 2। सो बाकी बचे हुए नंबर कौन से होंगे? 4q+1 एंड 4q+3 ऑड होंगे। और यस। हमें यही प्रूव करने के लिए बोला गया है कि 4q+1 एंड 4q+3 आर ऑड इंटीजर। सो जस्ट वी विल राइट 4q and 4q+2 both are divisible by 2, hence these are even number, and 4q+1 4q+3 are not divisible by 2, hence it is odd integers। ये सब odd integers हो जाएंगे। समझ में आ गया सबको? say yes, no, yes sir, यस सर। Yes, sir. okay। इसमें भी और भी ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी उससे टफ वाले क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन को देखो, समझो और पढ़ो कि हमें क्या एक्चुअली फाइंड आउट करना होगा। एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर। क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ। सो किन नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना है? 616 32 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। So we will start with largest number, that is 616. A bigger number is equal to 32 into 32 को कितने से मल्टीपल करें? सर अगर मैं 10 से मल्टीपल करता हूं तो 320 आते हैं, ये 10 से मल्टीपल करने के बाद में। अगर मैं 20 से मल्टीपल कर देता हूं तो ये बन जाएंगे 640। सर 640 इज ग्रेटर देन 616, सो मल्टीपल किससे करना होगा? 19 से। सो 32 को 19 से मैं मल्टीपल कर रहा हूँ। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, so this is 28 and this is 32, 806 608।
सो 19 से मल्टीपल करना है और यहाँ पे रिमाइंडर आपको बतानी है कितने लिखें। 8। ओके, सो फिर से हमें यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करना है और अब हम किसके बीच में करेंगे? 19 और 8 और 32 और 8। 32 और 8, 32 bigger और number 8. is 32, so we will write 32 here, we will write 8 here, we will multiply this one with some number and we will add remainder here. So कितने से मल्टीपल करना चाहिए 8 को? 4. 4 से मल्टीपल किया, रिमाइंडर कितने आएंगे? 0. 0. 0। जहां पे 0 रिमाइंडर आ जाता है उसी स्टेप में मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी दिखने 8. चाहिए। 8. So highest common factor between 8. 616 comma 32 is equal to this number, that is 8. Answer is 8. Clear हुआ? Yes, Yes, sir. sir. बोलो, Yes, sir. नहीं समझ रहे? आगे अब यहाँ पर पढ़िए इस क्वेश्चन को। ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन से थोड़ा टफ है लेकिन थोड़ा टफ है। यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट अ स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पहले क्वेश्चंस में हम लोग पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन में हम लोग स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे। अच्छा, स्क्वायर कैसे होगा? पहले मुझे कोई पॉजिटिव इंटीजर बताएगा तभी तो मैं उसका स्क्वायर करूंगा। सो फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करनी है। और पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में वहां पर लिखा हुआ है जरा देखना, 3m एंड 3m+1। तो उस नंबर्स को देखकर आपको b की वैल्यू डिसाइड करनी है कि b की वैल्यूज क्या लेना चाहिए। वैल्यू 3 लेनी है, तो b की वैल्यूज मैं यहां पर 3 ले लूंगा। वी विल से लेट a be any positive integer given by a is equal to 3q plus r। अब इस r की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी? सर स्क्रीन ऑफ हो गई। हाँ, एक मिनट। वेट कर लेना थोड़ा। ले सकता हूँ बोर्ड पे फिर, लेकिन कैमरा वो डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है। एक कैमरा होना चाहिए जो डिस्प्ले करे। लैपटॉप के कैमरे से देखते हैं, कल वो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। दोपहर में तो मैं अपने मोबाइल से एक्सपेरिमेंट कर रहा था लेकिन वो सक्सेस हुआ नहीं।
Is it audible to all? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पर हमें जो प्रूव करना है इक्वली डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, वी हैव टू प्रूव अ स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके, आइदर ऑफ द फॉर्म 3m plus 1, ओके। सो इसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग वर्क करेंगे, और इससे हमें ये चीज पता चल रहा है कि b की वैल्यू जो है वो कितनी लेनी चाहिए, b की वैल्यू कितनी लेनी है, 3. 3. So just we will write let a number a is equal to 3q plus r. अब r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी एंड 3 तक जाएगी, तो मुझे a जो नंबर दिखेगा that number will be 3q plus 1, 3q plus 2. क्या 3q plus 3 लिख सकते हैं? No. we cannot write No. 3q plus 3, ओके, हमें इतने ही नंबर लिखने। अब ये नंबर मुझे मिल गया, अब मुझे क्या करना है, कोई क्वेश्चंस पढ़कर बताएं। अब मुझे क्या करना है, Square. स्क्वायर करना है उन नंबर्स का। तो मैं ए स्क्वायर की वैल्यूज लिखूंगा, तो मैं ए स्क्वायर की वैल्यूज लिखूंगा 3q स्क्वायर, 3q plus 1 स्क्वायर, 3q plus 2 स्क्वायर। वन बाई वन वी विल टारगेट ईच ऑफ दिस नंबर, एक एक करके मैं इन सारे नंबर को टारगेट करूंगा, और मैं ये कंफर्म करूंगा कि ये सर ये इवन है, लिखना odd बाकी था। अच्छा लिखना बाकी था, तो लिख लीजिए a is equal to 3q plus r, 0 is less than equal to r is less than 3. So a is equal to 3q plus 1, 3q plus 2. आप ये सब लैंग्वेज में लिखोगे, स्क्वायरिंग द नंबर्स, नंबर को स्क्वायर करना, ये सब लैंग्वेज में लिखोगे। सो स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर, 3q plus 1 का स्क्वायर एंड 3q plus 2 का स्क्वायर मिल जाएगा। सर लिख दी। ओके, सो नाउ ए स्क्वायर जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 into 3q स्क्वायर? देखना जरा, चलो थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगा, इसलिए पहले स्क्वायर कर लो। 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 9q स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर 9q स्क्वायर लिखा, कॉमा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज कीजिए। सो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, नेक्स्ट वाले का स्क्वायर कर रहा हूं, 9q स्क्वायर प्लस 3 2 6 2 12, सो दिस विल बी 12q प्लस लास्ट में क्या आएगा, सो प्लस 4 लिखना चाहिए अपने को, प्लस 4 आ गया। हमें जो प्रूफ करना है उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि 3m या फिर 3m plus 1 के टर्म में होगा। इट मीन्स मुझे 3 कॉमन लेना चाहिए। फर्स्ट वाले नंबर से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो क्या कॉमन ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए, 3q स्क्वायर, ओके। सेकेंड वाले नंबर से यहां पर सर, ऑब्जर्व आपने करो और मुझे first बताओ line कि में- क्या कॉमन ले सकते हैं। हाँ बोलिए, फर्स्ट लाइन में। सर फर्स्ट लाइन में आपने सेकंड लास्ट वर्ड 12q 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 लिखा हुआ है। जो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, वहां पे नंबर क्या था, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही था। सो 3q का स्क्वायर करोगे तो 9q स्क्वायर आएगा, 2ab करेंगे तो 12q आएंगे, b स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। आ गया, ये 12 लिखा हुआ है, दिस इज 12q प्लस 4। बोलिए, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, नाउ जो ये सेकेंड वाला टर्म है, उस सेकेंड वाले टर्म्स में से मुझे कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि 1 रिमाइंडर रह जाए, बाकी के टर्म्स में मुझे 3 भी कॉमन आना चाहिए।
तो यहाँ पर 1 तो कॉमन आ गया सर, मुझे 3 ही कॉमन लेना है, ज्यादा कॉमन नहीं लेना है। मुझे देख लो यहाँ पर क्या प्रूव करना है, 3 टाइम्स m एंड 3 टाइम्स m प्लस 1, तो मुझे कॉमन भी 3 ही लेना है। तो मैं 3 कॉमन लिया तो रिमेनिंग टर्म्स क्या बचेंगे, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ओके, लास्ट वाले नंबर को ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे +4 है। ओके, सो अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। देखो जरा, 4 को मैं लिख सकते हैं 3 + 1, और उसको 3 + 1 क्यों लिखा, तो लास्ट वाले में यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इस 4 को मैं 3 + 1 लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं 3 + 1, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, 3m + 1 के टर्म्स में। तो मैं इसलिए उसको एडजस्ट किया और मैंने यहां पर बनाया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ओके, अब इन नंबर्स को मैं चेंज करके m नाम दे देता हूं। सो अगर 3q स्क्वायर की वैल्यूज m है तो ये 3m बन गया। अगर 3q स्क्वायर प्लस 2q की वैल्यूज m है तो ये भी 3m + 1 बन जाएंगे। और लास्ट वाले में मुझे m किसको कंसीडर करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल तरीका, जो भी ब्रैकेट में दिख जाए उसको क्या करना है, m लेना है। तो ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है उसको आप देखोगे, उसको m नाम दोगे तो फिर से क्या बचा, 3m + 1। तो आइदर नंबर 3m के फॉर्मेट में है और आइदर नंबर देख लो किसके फॉर्मेट में है, 3m + 1 के फॉर्मेट में। तो a square of any number can be of the format of 3m और 3m + 1। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो इसी फॉर्मेट में से किसी एक में होगा। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके मैं देखता हूं, ये मिटा दूं। ओके, तो कोई भी नंबर आप अपने मन में सोचिए जो पॉजिटिव इंटीजर हो। 4 ले लें, तो इसके 4 का स्क्वायर करोगे तो कितने होंगे, 16। अगर मैं 3 के मल्टीपल में इसको लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, 3 × 5 + 1। यही बता रहा है ऊपर का एल्गोरिथम। ओके, कोई भी दूसरा नंबर अपने मन में सोचिए जो आपको लग रहा है, पॉजिटिव लेना, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। 7। ओके, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। तो 49 को लिख सकते हैं 16 3 + 1 लिख सकते हैं। देखो सेम आ रहा है, 3m + 1। कोई ऐसा एग्जांपल सोचो जो 3m के टर्म्स में आए। सिक्स का स्क्वायर, अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूं तो सर ये 36 आएगा। ओके, 36 को क्या लिख सकते हैं, 12 × 3। तो यहाँ पर 3m के टर्म्स में है, दिस इज 3 एंड दिस इज m। आ गया। तो यही यह स्टेटमेंट बता रहा था कि कोई भी स्क्वायर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो वो आइदर 3m के टर्म्स में लिखेंगे, आइदर वो 3m + 1 के टर्म्स में लिखेंगे। प्रूफ हो गया। अगर सपोज ऐसा ही क्वेश्चन मैं कुछ दे दूं, मैं बोलूं कि मुझे कुछ ऐसा प्रूफ करना है 2m + 3, तो हमें b की वैल्यूज क्या सिलेक्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ b की वैल्यू 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर b की वैल्यू 2 सिलेक्ट करूं तो क्या कभी ऐसा चीजें यहाँ पर हो सकता है +3? No. नहीं, इवन क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर 2m एंड 2m + 1 पे ही हमें लिखना पड़ेगा, 2m एंड 2m + 1। तो हमें b की वैल्यूज यहाँ पे 2 ले लेनी पड़ेगी एंड नंबर जो a बनेंगे दैट विल बी 2q + r। तो r की वैल्यूज कहां से कहां तक लिखेंगे, 0 1 0 एंड 0 1 0। हमें नंबर मिल जाएंगे 2q एंड 2q + 1। अगर मुझे स्क्वायर करने के लिए पूछे या क्यूब करने के लिए पूछे तो हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, जो क्वेश्चन में बोल रहा होगा वो मुझे कर लेना है। स्क्वायर बोलेगा तो मुझे स्क्वायर कर लेना है, क्यूब बोलेगा तो मुझे क्यूब कर लेना है। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए किसका, a + b के होल स्क्वायर का। फार्मूला किसका पता होना चाहिए, a + b का होल क्यूब।
होल क्यूब का फॉर्मूला सबको पता है? Yes, sir. बताइए। A plus B into A A square. square plus B B square square plus 2AB. होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल क्यूब भी अगर आ जाता है क्वेश्चन में, स्क्वायर की जगह पे अगर क्यूब वर्ड की दिया हुआ रहेगा तो मुझे क्यूब के टर्म्स में फंक्शन को लिखना पड़ेगा, टर्म्स को लिखना पड़ेगा वहां पे। नेक्स्ट है यहाँ पे देख लो, क्यूब पे ही है ये क्वेश्चन। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करना है और शो करके क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इज ऑफ 9m 9m plus 1 and 9m plus 8। तो सबसे पहले आपको ये चीज बताना है कि यहाँ पर मैं b की वैल्यूज क्या सिलेक्ट करूं? 9 3 ओके 9 ओके 3 भी सिलेक्ट करके किया जा सकता है और 9 भी सिलेक्ट करके किया जा सकता है। रीजन इसका 3 स्क्वायर की वैल्यूज 9 होती है और यहाँ पर 3 का क्यूब करने के लिए बोल रहा है, तो क्यूब करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 27। सो 3 का क्यूब 27 हो सकता है। सो क्वेश्चन हम अगर 9 से स्टार्ट करें तो आपको आर की वैल्यू जो सिलेक्ट करोगे कहां तक चला जाएगा वो? क्यों? बी की वैल्यूज अगर मैं 9 सिलेक्ट करूं तो आर की वैल्यूज कहां तक जाएगा? 8 तक जाएगा ना आर की वैल्यू। अगर बी की वैल्यूज 9 है तो आर की वैल्यूज बी से कम होगी, 8 तक जाएगी। अगर मैं नंबर्स को कुछ ऐसा लिखूं कि नंबर इज ए इज इक्वल टू 9q प्लस आर, तो आर की वैल्यूज आप कहां से कहां तक सिलेक्ट करोगे? 0 to 8। आर की वैल्यू 0 1 2 3 0 to 8. अप 8 तक लेके जाएंगे। बट देखो कि कितने सारे कैलकुलेशन मुझे क्यूब के लिए करना पड़ेगा। कितने कैलकुलेशन टोटल करने पड़ेंगे? 9। 0 से लेकर 8 तक, इट मींस 9 टाइम्स मुझे क्यूब का ऑपरेशन करना पड़ेगा। दैट विल बी अ टीडियस प्रोसेस, लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्यों नहीं मैं 3 से ही स्टार्ट करता हूं। अगर मैं यहां पर 3 से स्टार्ट कर दूं, 3q प्लस आर, तो आर की वैल्यू 0 से 3 तक लेकर जानी पड़ेगी, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। तो आर की जो पॉसिबल वैल्यू होगी 0 होगी, 1 होगी एंड 2 होगी। कितना ही लिखना पड़ेगा? ओके सो नंबर्स कौन कौन से फॉर्म होंगे सर? 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, ये 3 नंबर फॉर्म होंगे। अगर मैं इन सबका, हमें क्या करना है देखो, क्यूब करना है। तो ए क्यूब की वैल्यू सर 3 का क्यूब 27, क्यू का क्यूब किया, 3q प्लस 1 इसका भी क्यूब करना पड़ेगा एंड 3q प्लस 2 इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। ओके अब आपको एडजस्ट करना होगा कि सर मैं 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 के फॉर्मेट में लिखना है। देखो जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं 27 क्यू का क्यूब जो लिखा हुआ है, क्या आप उसमें से 9 कॉमन ले सकते हो? 27 क्यूब का जो क्यूब लिखा हुआ है उससे 9 कॉमन ले सकते हैं। और दूसरा टर्म लिखा हुआ है 3q प्लस 1 का क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब है। अगर मैं a प्लस बी के होल क्यूब को ब्रेक करता हूं तो b का क्यूब कितना आएगा? b का क्यूब कितना आएगा? सिर्फ उसमें b का टर्म देखो, a प्लस बी की तरीके से सोचो, b का क्यूब, a प्लस बी का जो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो a की वैल्यू वहां पर 3q की तरह जा रही है और b की वैल्यू वहां पर क्या जा रही है? 1 की तरह जा रही है। तो उस b का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। एंड उसी तरीके से 3q प्लस जो 2 लिखा हुआ है उस 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 8। देखो ऊपर में जो प्रूव करना है वैसा ही है क्या? है ना? तो हमें हिंट मिल रहा है कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लिखिए और उसको एक्सपेंड करके एडजस्ट कीजिए। a इज इक्वल टू 27 q का क्यूब
3 क्यूब का क्यूब करेंगे तो सर 27 क्यूब क्यूब प्लस b का क्यूब इट मीन्स 1 प्लस 3a स्क्वायर b 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर 9 क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट इसका स्क्वायर करो, क्यूब करेंगे सर तो नेक्स्ट जो क्वांटिटी बनेगी 27 क्यूब का प्लस सर स्क्रीन ऑफ हो गई। डिस्कनेक्ट थी। हाँ एक मिनट। गाइस टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद अपन आते हैं। ठीक है सर बोल रहे हैं 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं अपन। ठीक है ऑलराइट गाइस, ऑनलाइन वाले कैन आई हैव यस यस सर। यस 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 Yes, sir. चलो ठीक है ओके ओके।
प्यारे दोस्तों ऑनलाइन वाले, दयानंद जी और शास्त्री जी, शास्त्री जी क्या हालचाल है? यस सर, बढ़िया। और ये दयानंद कोरी जी, मिस्टर दयानंद कोरी, हाउ आर यू बेटा? चैट बॉक्स में लिख रहा है ये सबको, सबको यस सर बोल रहा है दयानंद। शास्त्री जी भी यस सर। याशिका बेटा स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है क्या? कुंदन सर दिख रहे हैं सबको? सर दिख रहे हैं पर ब्लर है। हाँ अभी सर, देखो blurry सर की है। क्लैरिटी आएगी। सर आपके दिलों में है। अभी ठीक है याशिका बेटा? एक मिनट, दिख रहा है नहीं क्या? सर, और ये स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ वो दिख रहा है क्या? किसी साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, पागल सा, वो मैथमेटिशियन था एक। अरे दिख रहा है क्या किसी को स्क्रीन पे? नहीं मैं सर। 1997 का पेंट खोला हुआ है। क्यों नहीं दिख रहा? सर फट रहा है। क्या फट रहा है बेटा? क्लैरिटी नहीं है मतलब? सर दिख रहा है पर वो ना पढ़ा नहीं जा रहा, बहुत ब्लर है। बहुत ब्लर है। ये कैसा है अभी? थोड़ा डिफरेंस आया? फटाफट मुझे बता दो जल्दी से यार। नो सर। ठीक है गाइस, तो एक काम करो, अभी 5 मिनट्स में वापस से मीटिंग शुरू कर रहे हैं। एक बार वापस से लॉग इन करो आप लोग। 5 मिनट में वापस से मीटिंग शुरू कर रहे हैं, लॉग इन करो वापस उसमें से। ठीक है, सेम लिंक, सर सेम लिंक। ऑल राइट, ऑल राइट।